دنیا میں خوش صرف دو لوگ رہتے ہیں، اللہ پہ توکل کریں، دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، اور جتنا ہے سمجھیں میرے لیے یہ بہت زیادہ، ضرورت مجھے اس کی بھی نہیں، 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ آج کل پتہ ہے لوگ بچوں کے لیے بڑے پریشان ہیں۔ ایک دیندار صاحب تھے، ایک دن بڑی نیک پرہیزگار، چہرے پہ نور وور، ٹوپی داڑھی، مجھے کہنے لگے حضرت میری فیکٹری کا پتہ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ ہو نہ جائے۔ میں نے کہا تم دیندار نہیں ہو۔ پھر ایک دن میرے پاس آیا، کہہ رہے میرے 3 بچے ہو گئے، پرانا قصہ ہو گیا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں، 4تھا بچہ ہو رہا ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ یار پہلے ہی مہنگائی کا دور ہے، پریگننسی ہو گئی ہے بیگم کو، اتنی مہنگائی ہے مفتی صاحب، آپ میرے بیان بھی سنتا، پابندی سے سنتا تھا۔ تو مجھے خیال ہوا خدا کے بندے مرغے پھوڑتا ہے تو صبح و شام، یوں کہہ دیتا میری بیوی کی صحت اچھی نہیں ہے یا مجھے بچے پسند ہی نہیں ہے، ہوتا ہے بعض لوگوں کی فطرت نہیں پسند ہوتے بچے، یوں کہہ دیتا، یہ تو نہ کہتا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے۔ اتنا مجھے غصہ آیا نا، یہ داڑھی تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اتنا چھوٹا دل۔ اس کا مطلب یہ داڑھی آپ کی کلچر کی بیس پر ہے، جو اللہ کو مانتا ہے تو کتنی بڑی حقیقت، بچہ پیدا ہوتا ہی اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے، وہ غافل ہوگا۔ اور اتنا غصہ آیا، میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، میرے دلائل سے میں جواب نہیں دیتا۔ میں نے کہا بھائی جاؤ یار، نہیں کرو، گرا دو اس کو، اللہ خود ہی وہ بچہ قیامت کے دن حساب ہوگا۔ میں نے کہا واقعی تم قحط سے مر جاؤ گے، 4تھا ہو گیا نا تو روٹی کھانے کو نہیں ملے گی۔ میں نے کہا شادی ہی آپ نے غلط کی تھی، اس مہنگائی کے دور میں تو شادی اور ایک کیوں پیدا کی؟ پھر میں الٹے جوابات دیتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو خود 8 بچوں کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا آپ کا جو پہلا پیدا ہوا تھا نا وہ غلط ہوا تھا، اتنی مہنگائی میں اس کو پیدا کر کے ظلم کیا تم نے اس کے اوپر، اور آپ کا اپنا پیدا ہونا ہی غلط تھا، کیونکہ فیکٹری کو کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے۔ آپ کے ابا نے آپ کے لیے فیکٹری چھوڑی اور پاکستان میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں چھوڑا انہوں نے، یا تو فیکٹری چھوڑ کے جاتے اور فائر بریگیڈ کا سسٹم بھی چھوڑ کے جاتے اور پھر تمام حفاظتی ٹیکے بھی لگا کے جاتے، اور جو بیماریاں 10 سال بعد آنے والی ہیں ان کی ریسرچ کرتے، ان کے بھی پہلے سے ٹیکے ٹھوک کے جاتے۔ یہ تمام طرف سے جب امن سکون، بلکہ سیدھا سیدھا کہتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے، اس کے بعد پھر اولاد پیدا کرنی چاہیے تھی، ورنہ بھائی ٹرک کے نیچے بھی آ سکتا ہے بچہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بچہ پیدا ہو گیا، خدا نخواستہ ٹرک کے نیچے آ گیا، ڈاکو نے مار دیا، یہ جتنے ڈاکو نے مارے ہیں تو پیدا ہوئے بچوں کو تو مارے جو بڑے ہو گئے تھے۔ تو ان خطرات کی بیس پہ بھائی ایک بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں نے کہا بہتر یہی کہ اپنے آپ کو بھی گولی مار کے ہلاک کر لو، کیونکہ آئندہ حالات کا کچھ پتا نہیں ہے، کچھ پتا نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہو جائے گا، آئندہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوا۔ تو یہ پاگلوں کا ایک قسم ہے اور یہ بے دینی کا نتیجہ ہے۔ خدا کی قسم دنیا میں خوش صرف وہی رہ سکتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے کہ کھلانے والا پلانے والا وہ، اور دنیا مسافر خانہ ایسی کی تیسی۔ وہ ہمارے پنجابی دوست ہیں، جب ان کا بیوی سے پٹا ہوتا تھا نا اور سسرال والے ان کو یوں چیٹ رہے تھے نا، بہت زیادہ ان کو اسکرو پانے سے ٹائٹ کیا ہوا تھا، بہت زیادہ جب تنگ آ گیا، مجھے کہا کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ اپنے سسرال کو کہو ایسی کی تیسی، جو مجھے سمجھ میں آئے گا میں وہ کروں گا۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کراچی کے بہت معصوم ہو، ہمارے یہاں یہ ایسی کی تیسی سے کوئی فرق۔ پنجاب میں ایک خاص علاقے کی گالیاں بڑی مشہور ہیں، میں اس علاقے کا نام نہیں لے رہا، کسی شہر والوں کو بدنام نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں یہ جو آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہو نا کہ ایسی کی تیسی، اس سے آپ سمجھتے ہو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور ہم سسرال میں کہیں گے ایسی کی تیسی، تو ان کو ایسا لگے گا جس کسی نے کھجایا ہے تھوڑا سا۔ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں اتنی موٹی بھاری بھرکم وزنی فحش گالی دینے سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے سامنے والے پہ، اس کو ایسا لگتا ہے کہ داماد نے کچھ شاید تھوڑی سی انسلٹ کی ہے، کہہ رہی ہے ایسی کی تیسی، وہ ہنسیں گے، وہ کوئی کام کرنا چاہے شادی وادی کرنا چاہ رہے ہو، تو میں نے کہا ایسی کی تیسی، وہ کیوں ہنسیں گے یار، بس اتنی سی بات ہوگی ایسی کی تیسی۔ تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ایسی کی تیسی کوئی گالی، تو میں شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا ہم تو اتنے عرصے سے لوگوں کو ایسی کی تیسی سکھا رہے ہیں۔ تو دنیا میں خوش صرف 2 لوگ رہتے ہیں، اللہ پہ توکل کریں، دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، اور جتنا ہے سمجھیں میرے لیے یہ بہت زیادہ، ضرورت مجھے اس کی بھی نہیں، 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ آج کل پتہ ہے لوگ بچوں کے لیے بڑے پریشان ہیں، میرے پاس آتے ہیں، میرے بچے ہیں، ایکچولی میں بہت فیوچر کے بارے میں بہت ٹینشن، میں کہتا ہوں تمہارے سالے 2 بچے ہیں کی وجہ سے اتنے ٹینشن میں، تمہیں اتنے ملتے جتنے مجھے ملے ہیں، تم تو مر چکے ہوتے اب تک۔ کہہ رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں پتہ کیا سوچتا ہوں، میرے بچے ماشاءاللہ نیک بن گئے، کتنی اچھی بات۔ فیوچر کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ بھائی بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے، نہیں تو ٹماٹر بیچے گا، کیا کرے گا؟ ٹماٹر کا ٹھیلا الحمدللہ کہیں بھی نہیں گیا۔ کہتے ہیں کیا مفتی صاحب آپ کے بچے ٹماٹر بیچیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی اگر کچھ کر لیں گے تو نہیں بیچے ٹماٹر، نہیں کرتے تو کیا بیچو؟ ٹماٹر بیچو، اس میں کیا ہے؟ آپ راضی ہو جائیں گے ٹماٹر بیچیں؟ میں نے کہا جب خود ٹماٹر بیچنے پر اس کو بیزتی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کی ٹینشن میں کیوں لوں؟ بھائی تو نے کچھ کرنا ہے تو کر لے، نہیں کرنا ہے تو تیرا عذاب میں کیوں مسلط کروں اپنے اوپر؟ خام خواہ کی ٹینشنیں کیوں پالی ہوئی ہیں تم لوگوں نے اپنے اوپر؟ دیکھو یہ میرا بھانجا بیٹھا ہوا ہے واسطے جو قرآن پڑھا رہا ہے، یہ کیا ہوا انٹر میں نمبر بہت کم ہے، فیل ہو گیا تھا، رافع تھا وہ، اس کا بڑا بھائی انٹر میں فیل ہو گیا، یہ کہہ رہے میری بےزتی اسی کی واقعہ ہے وہ، خیر اس کا بڑا بھائی فیل ہو گیا انٹر میں، ابا کو آ کے بتایا کہ بھائی آپ کا بیٹا فیل ہو گیا، اس کے جو ابا ہے میرے بہنوئی ہیں، بچپن کے دوست بھی ہیں، حضرت سے تعلق تھا، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، ٹینشن ہی نہیں لی، صحیح ہے نا، ابھی بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ مسافر یہ جو ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں نا بچوں کی، کہتے ہیں ہمیں بچوں کی تربیت کی فکر ہے، بھائی تربیت کی نہیں ہوتی آپ کو، آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، آپ کہہ رہے ہیں کم بخت آپریشن سے پیدا ہوا تھا، اس وقت اتنا خرچہ ہوا، اسکولوں کی اتنی فیسیں، اب کماؤ پوت بنے گا، تو کیا بنے گا؟ تبھی اگر غیب سے پتہ چل جائے نا کہ انٹر فیل ہوگا لیکن کمائے گا 1 کروڑ، ماں باپ کہیں گے 20 دفعہ فیل ہو جا تو، ہمیں روکڑا چاہیے۔ جیسے ایک ابا کے 4 بچے تھے،
तारुफ करवाया, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये प्रोफेसर है, ये क्या है, ये चोर है। का इसको रखा हुआ क्यों, कहते कमाता सिर्फ यही है। तो माँ बाप लेबल तरबियत का लगा रहे होते हैं, असल में तरबियत मकसद नहीं होती। कमाने से तालीम याफ्ता बनाना मकसद नहीं होता, असल मकसद होता है रोकड़ा। तो हमारा जब मकसद रोकड़ा है ही नहीं, हमने कमाने के लिए पैदा ही नहीं किया, हमने पैदा इसलिए किया कि भाई अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह चाहता है ईमान वालों के घर में मखलूक पैदा हो। तो जब अल्लाह के लिए किया है तो भाई कमा ले तो भी ठीक है, नहीं कमाए तो तू मरेगा ना, मैं थोड़ी मरूंगा तेरे ना कमाने से। और जब ये फलसफा बच्चों को दोगे ना तो उसका बाप भी कमाएगा, देखना। फिर बच्चा पता क्यों नहीं पढ़ रहा होता, वो समझता है मेरे पढ़ने से फायदा किसको हो रहा है, अब्बा को, वो पढ़ ही नहीं रहा। जब उसको पता चल जाएगा कि मेरे पढ़ने का मुझे ही फायदा है, नहीं पढ़ूंगा तो मुझे ही नुकसान है, तो फिर पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो उठाए नुकसान। कितनी दफा उछालेगा, लेगा 3 दफा 4 दफा, उसके बाद कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना फिर वो। तो इन चीजों की ज्यादा टेंशन, हाँ हमें बच्चों की दीनी तरबियत की फिक्र होती है, कमाऊ पूत की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन मुसल्लत नहीं करो। दीनी होती है कि कहीं गलत सिंक में तो नहीं जा रहे, उसमें हम चपेट भी देते हैं उनको। मुझे नहीं याद कभी बच्चे के स्कूल की छुट्टी पे मारा हूं मैंने, नमाज छोड़ने पर मैं नहीं छोड़ूंगा बच्चे को, वो तो हदीस में हुक्म है, चित्रौल लगाओ इनको, नमाज नहीं छोड़ने दो भाई, क्योंकि आखिरत ये थोड़े दिन की है भाई, यहाँ तो क्या बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा। आखिरत में अगर बख्शिश हो गई तो सुभान अल्लाह। और तरबियत की फिक्र करो, तालीम की भी करो, लेकिन मुसल्लत अपनी खोपड़ी पे नहीं करो, और मुसल्लत करने से वो पढ़ेगा भी नहीं। मैंने कभी नहीं देखा जो माँ बाप बच्चों की टेंशन लेते हो तो बच्चे भी माँ बाप की टेंशन ले रहे हो। बच्चा कभी भी किसी की टेंशन, कभी ऐसा नहीं होगा आप बैठे हुए यार टेंशन में, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे ने देखा अब्बा टेंशन में है, बच्चे के आंसू निकले, किताब लेके बैठ जाए। मैंने इस कायनात में, पाकिस्तान में कम से कम ऐसा बच्चा आज तक नहीं देखा। समझ रहे हो, इतने नेक बच्चे मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट। तो कहेगा अब्बा टेंशन क्यों ले रहे हो, अब्बा बेटा तू पढ़ नहीं रहा है। फिर इधर से निकल जाएगा, दूसरे दरवाजे से निकल के बाहर चलेगा, कहेगा शायद थोड़ी देर में अब्बा का मूड सही हो जाए। तो आपके जोर जबरदस्ती से कोई नहीं पढ़ता। हम भी नहीं पढ़े, हमने चित्रौल खाए हैं, हेंटर से मारे खाई हैं, लेकिन फिर भी नहीं पढ़े। जब पढ़ने पर आए तो अपनी मर्जी से बहुत पढ़ गए। तो जबरदस्ती नहीं होता ये काम। और सबसे बड़ी बात, दुनिया को मुज़य्यन कर दिया है ना शैतान ने, तो उसकी वजह से टेंशन है मार्केट में क्या कर रही है, चल रही है बहुत ज्यादा। तो बस ये जल्दी खत्म करता हूं। अल्लाह कहते हैं, शैतान ने कहा वाला उग़वियन्नहुम अजमईन, दुनिया को अट्रैक्टिव बना के सबका बेड़ा गर्क करूंगा मैं। शैतान के अल्फाज देखो, आगे कह रहा है इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, हाँ मुझे पता है तेरे कुछ नेक बंदे होंगे जो मेरे काबू में नहीं आएंगे। अल्लाह ने फरमाया मेरे जो नेक बंदे होंगे ना, लईसा लका अलैहिम सुल्तान, तेरा उन पर रोब नहीं चलेगा, जोर नहीं चलेगा तेरा उन पर, कुछ बंदे बचे रहेंगे तुझसे। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो तेरी तुझे फॉलो करेंगे, मैंने भी फैसला किया है उनको जहन्नम में डालूंगा। ठीक है, तू जितनों को डाल सकता है ना जहन्नम में ले जा, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, इस बेस पे छोड़ूंगा नहीं कि तुझे फॉलो किया उन्होंने, ना ना ना। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुत्तकीन, लेकिन जो तेरी दावत पर लब्बैक नहीं कहेंगे और बच जाएंगे, उनके साथ क्या होगा, फी जन्नात, उनका दर्जा और बुलंद हो जाएगा, क्योंकि शैतान उनको खींच रहा था और वो दुनिया की तरफ माइल नहीं हुए। उनके लिए बागात हैं, वउयून, और चश्मे हैं, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, उनसे कहा जाएगा सलामती के साथ इस जन्नत में दाखिल हो जाओ। और बहुत अहम आयत, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, उनके दिलों में अगर कोई नफरत, लड़ाई, बोझ होगा, हम वो जन्नत में निकाल लेंगे। इख्वानन अला सुरूरिन मुतकाबिलीन, तख्तों पे बैठे होंगे भाई भाई बनके। इससे पता चलता है कि दुनिया में भी 2 जन्नती ऐसे हो सकते हैं जिनके दिलों में आपस में बोझ हो। बाज़ दफा बोझ की बेस ठीक नहीं होती, वो बोझ हराम है, नाजायज है, समझते हो। जैसे दुनिया की बेस पे बोझ रखा हुआ है, बाज़ दफा बोझ की बुनियाद ठीक होती है, इस वजह से अल्लाह दोनों को जन्नत में लेके जाएगा। हालांकि दोनों एक दूसरे से क्या करते थे, नफरत, लेकिन जिस बेस पे नफरत करते थे वो इज्तिहादी थी, उसमें राय में गलती हो सकती है, इसके बावजूद अल्लाह दोनों को कहां लेके जाएगा, जन्नत में। तभी हजरत अली और मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो लड़ाई हुई है ना, इसमें हजरत अली से रिवायत मिलती है कि हमारा शुमार इन लोगों में है कि वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, कि अल्लाह हमारे इस दिल में जो गिल आ गया है इसको क्या कर देगा, खत्म। इसके अव्वलीन मिस्दाक सहाबा हैं, क्योंकि उनका जो बोझ या नफरत थी वो दुनियावी हवस की बेस पे नहीं, बल्कि वो सियासी इख्तलाफ की बेस पर, जिसको मैं पिछले बयान में तफसील से बता चुका हूं। ये लंबा रुकू है और वक्त भी काफी ज्यादा हो गया है, तो इंशाअल्लाह फिर आगे इसमें जो है ना अल्लाह ने वाकया बयान किया। ये जो वाकया है ना, आगे फिर लूत अलैहिस्सलाम का वाकया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, वो हम इंशाअल्लाह कल देखेंगे उसको। शैतान के वाकये में जो हमें सबक मिलता है ना, आदम अलैहिस्सलाम और शैतान के वाकये में, उसको मैं 2 लफ्जों में बस बयान करके बात खत्म करता हूं। देखो इस वाकये में हमें बड़ा सबक क्या मिलता है कि 3 कैटेगरी के लोग आए हमारे सामने, एक आदम, एक फरिश्ते और एक शैतान, यानी जिन। फरिश्ते से क्या हुआ, फरिश्तों को अल्लाह ने बताया कि एक गारे से मखलूक पैदा कर रहा हूं, सजदा कर लो। फरिश्तों को लॉजिक समझ में नहीं आई, ना उन्होंने लॉजिक पूछी, बगैर कहे ठा करके सजदा कर लिया, नाफरमानी का कोई तसव्वुर था ही नहीं। हम लोग इंसान हैं या फरिश्ते हैं या इंसान हैं, इंसान है। इसका मतलब हमसे ये उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती कि जहां हुक्म आया सारे अहकाम ठा करके हम ठक 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 फॉलो करते हुए चले। अल्लाह ने कहा नजर की हिफाजत, बचपन में पहली दफा जब ये आयत सुनी तो उसके बाद से लेकर आज तक किसी आंटी की तरफ नजर नहीं उठी। इतने नेक खंबे से टकरा गए मगर किसी खातून को नहीं देखा, क्योंकि हम फरिश्ते बोलो नहीं। दूसरी तरफ शैतान था, शैतान को कहा सजदा करो, इतना ढीठ, यानी वो 180 डिग्री पे दूसरी तरफ नाफरमानी में, फरिश्ते फर्माबरदारी में 180 डिग्री पे इधर, लॉजिक वॉजिक पूछी नहीं, धाड़ करके सजदे में गिर गए।
दूसरी 180 डिग्री पे कौन था? शैतान। उसको कहा सजदा करो, उसने ये नहीं कहा नहीं करूंगा। लम अकुन, इट इजंट पॉसिबल। पूरा पूरा तर्जुमा जो उसके बनेगा ना, लम ला असजुदु नहीं कहा। ला असजुदु का मतलब है सजदा नहीं करूंगा। लम अकुल लि असजुदा का मतलब है इट इजंट पॉसिबल टू डू दिस फॉर मी। ये मैंने कहा था ना थोड़ी थोड़ी मुझे भी आती है, वो भी सबूत हो गया। ये मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, ये मतलब बनता है इसका। लम अकुन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसा हूं ही नहीं। ये दूसरी तरफ 180 डिग्री पे है कि नहीं है? फिर अल्लाह ने जब डांट के निकाला, दफा हो जाए यहां से, तो भी खोपड़ी में बात नहीं है, और अड़ गया, और ज्यादा क्या हो गया? अड़ गया। भाई अब तो मैं इनको भी गुमराह करूंगा, मैं तो जाऊंगा इनको भी जहन्नम में लेके जाऊंगा। ये दूसरी 180 डिग्री है। बीच में थे आदम अलैहिस्सलाम, उनकी, हम लोग शैतान भी नहीं है। क्या ख्याल है कि जो अल्लाह कह रहे हैं उल्टा उल्टा चलना शुरू हो जाए? हर काम उल्टा भी नहीं कर रहे हैं ना हम लोग। क्या ख्याल है भाई? कुछ सीधा भी कर रहे हैं, कुछ उल्टा भी कर रहे हैं। तीसरे हैं आदम अलैहिस्सलाम, जो हमारे वालिद हैं। उनकी नेचर क्या थी? उनसे अल्लाह ने कहा कि ए आदम, ये तेरे लिए जन्नत है, ला तक़रबा हादिही शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, आप ज़ालिमीन में से हो जाओगे। शैतान ने आके वरगलाना शुरू किया, मुज़य्यन किया उस दरख्त को। इतना अट्रैक्टिव दरख्त, इतना खूबसूरत, कुछ तो वजह होगी जो अल्लाह ने रोका है। बिला वजह तो अल्लाह भी नहीं रोकता ना, असल में इसलिए रोका है, ये वाहिद दरख्त है जिसे खाओगे तो मौत खत्म हो जाएगी, हमेशा जन्नत में ही रहोगे। तो इतनी खूबसूरत, हम जब बहरे टाउन से इतना मुतासिर होते हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कितना मुतासिर हुए होंगे? क्या ख्याल है? तो डर तो लगा होगा ना, अल्लाह जन्नत से निकालना दे। शैतान ने कहा, अल्लाह ने जो कहा है ना ये दरख्त नहीं खाना, असल में एक्चुअली ये कहा ही इसलिए है कि ये खाओगे तो निकलने का ऑप्शन खत्म। तो अल्लाह ने पहले से ही कहा कि भाई ये ऑप्शन खत्म नहीं करना इनके लिए। ऐसी उल्टी सीधी बातें, फवसवस लहुम शैतान। तो ऐसे दिल में चीजें ख्यालात डाल के आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ट्राई करने में क्या जा रहा है भाई। ट्राई किया और अल्लाह की तरफ से मिली सजा। सबसे पहली सजा क्या मिली? कितनी बड़ी सजा थी, दोनों से कपड़े छीन लिए अल्लाह ने, जन्नत से निकाला बाद में, लिबास पहले से ना, दोनों बरहना हो गए। इससे पता चलता है इज्जतदार आदमी के लिए बेलिबास होना सबसे बड़ी सजा है। और गोरा फितरत से कितना दूर है बेलिबासी को मॉडर्निज्म, और फख्र करता है। चड्डी पहन, अगर कोई पूरे कपड़े पहन के घूम रहा हो, मैट्रिक पास। अगर घुटने से नीचे नेकर पहन के घूम रहा हो, इसका मतलब थोड़ा सा बिजनेस करता है, मॉडर्न फैमिली है भाई। चड्डी पहन के घूम रहा हो, भाई ये एजुकेटेड लोग हैं, ये हमारी तरह छिछोरे नहीं है, बैकवर्ड लोग नहीं है। पूरे पूरे कपड़े पहन के गर्मियों में भी क्या करें? आप जाओ ना ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर जाओ कभी, चड्डी, मलेशिया में गया हूं मैं, चड्डी पहन के गोरे बैठे हुए, तो उनकी गोरियां वो तो अलग ही हिसाब है। उनको तो इस पे भी गुस्सा आ रहा था, ये चड्डी भी क्यों है? वो तो गवर्नमेंट का लॉ है कि चड्डी उतारने पर पाबंदी है, वरना आप देखते चड्डियां मार्केट से क्या हो जाती, शॉर्ट। ये गधापन है, हम फितरत से दूर हो गए हैं। मियां बीवी हैं, जबकि उन दोनों का एक दूसरे से पर्दा नहीं है, लेकिन नॉर्मल हालात में मियां बीवी में भी हया होती है, तो वो कपड़े पहन के बैठते हैं, बरहना नहीं घूम रहे होते घर में, शर्म आती है उनको भी। तो जब मियां बीवी एक दूसरे से अल्लाह ने लिबास छीना, और कुरान कह रहा है इतना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ डिस्टर्ब हुए हैं, तफिका यखसिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, दरख्त के पत्ते तोड़ तोड़ के अपने ऊपर डाल रहे हैं, हालांकि देखने वाला कोई नामहरम नहीं है। अम्मा हुआ को आदम से शर्म आ रही है, और हजरत आदम को किससे शर्म आ रही है? अम्मा हुआ से। तो अल्लाह ने बताया कि हया में इंसान एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा हुआ होना चाहिए। बेलिबासी ये इंसानियत नहीं है। आज कहते हैं बेहयाई का कपड़ों से क्या, लिबरल तबका जो आ रहा होता है ना, भाई खातून की मर्जी है, वो पूरे कपड़े पहने, आधे पहने, आप अपनी नजर नीचे रखें, तो फिर कुछ भी ना पहना उसको, तो ये बेवकूफ, ये हया जो है ना, हया ये ईमान का हिस्सा है। तो हम हर चीज गोरों से ले रहे हैं भाई, वो नेचर से हट गए हैं वो लोग। तो औरत को भी चाहिए प्रॉपर ड्रेस में रहा करे। शौहर से शर्म आ रही है अम्मा हुआ को, और आज औरतों को गैर मर्दों से शर्म नहीं आ रही। वो एक औरत गई ना किसी दुकानदार के पास, शलवार का कपड़ा चाहिए, तो कहने लगी थोड़ा सा और बारीक दे दें, आजकल यही हो रहा है, ये तो बहुत मोटा है। उसने कहा ये ले लो, उसने कहा थोड़ा और बारीक, उसने दुकानदार ने कहा ये ले लो, उसने कहा और बारीक। तो वो दुकानदार ने कहा मैडम इसी में सब नजर आ जाएगा, इसमें फुल नजर आएगा, जो आप चाह रही है ना, इसमें आप ट्राई करके देख लें, फुल नजर आएगा। इस आदम के जो हम इंसान है ना, तो हमने ना फरिश्तों को फॉलो करना है, ना हमने किसको फॉलो करना है, शैतान को। तो हमने आदम को, तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या किया कि दरख्तों के पत्ते उन्होंने डाले हैं। तो आदम की फितरत में हया है, बेहयाई बेलिबासी नहीं है। बेलिबासी सजा है जो अंग्रेजों को मिली हुई है, और सेकुलर और लिबरल तबके को मिली हुई है कि लिबास ही मार्केट से क्या हो गया, शॉर्ट, और बेसुकूनी भी है इसमें। लिबास प्रॉपर होना, सुकून मिलता है इंसान को, जो बगैर लिबास के घूमते हैं, कभी एक दिन करके देखें ये काम। तो दूसरा गलती हो गई आदम अलैहिस्सलाम से। इससे पता चलता है भाई हम तो ना फरिश्तों की औलाद हैं, ना शैतान की औलाद हैं। पटियां पड़ा के शैतान हमसे भी गलती बोलो करवा सकता, हमसे भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जब से हमने आइस सुनी कि किसी आंटी को देखना नहीं, तो कभी आज तक किसी ने देखा ही ना हो, खंभों से टकरा गया हो, गाड़ी के ट्रक के नीचे आ गया हो, भाई उधर नहीं देखना मुंह करके। हो जाती है इंसान से गलती, तो आदम से भी गलती हो गई, उस पर सजा भी मिली। लेकिन जैसे ही आदम को पता चला कि मुझसे गलती हुई और अल्लाह नाराज हुआ, तो फौरन आदम और हव्वा ने मिलके दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, करते नहीं है हमें जुल्म पे, तूने माफ ना किया, रहम ना किया, हम बर्बाद हो जाएंगे, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो इससे पता चलता है भाई गलती फरिश्तों से तो गलती नहीं हुई, शैतान से हुई, अकड़ा रहा, आदम से हुई, अकड़े नहीं। ये बीच का रास्ता है। समझ में आ रही है बात? तो ये नहीं हो सकता कि मुझसे और आपसे कभी जिंदगी में कोई गलती ही ना हो।
बचने की कोशिश करना ये आदम की सुन्नत है, अगर हो जाए तो फिर तौबा करना ये भी किसकी सुन्नत है? आदम की सुन्नत। तो कोशिश करें बचने की, हो जाए तो तौबा में ताखीर मत करें। अब चूंकि हम आदम जैसे पैगंबर तो है नहीं, आदम से तो एक दफा हुई, उसके बाद पक्की ढक्की तौबा। हमसे हो सकता है 2 दफा हो, और खंबा टकरा के हमें पता चल जाए कि हमसे क्या हुई है, वो खंबा ही सजा के तौर पर। खंबा टकराना समझते, देखते हुए वो एक सहाबी के साथ हुआ ना कि वो किसी को देख नजर पड़ी कोई, तो वो टकरा गए किसी चीज से, तो आपने फरमाया ये सजा है, बस अल्लाह ने दुनिया में क्या दे दिया, हिसाब किताब पूरा कर दिया। तो अगर मेरे भाई कभी हो जाए, अब लड़कों को हैंड प्रैक्टिस की आदत पड़ चुकी है, तौबा करो बार बार। फौज फिल्मों की आदत पड़ चुकी है, छोड़ो इसको, कंप्यूटर निकाल दो घर से, बंद कमरे में मत बैठो। फिर भी देख लिया, तौबा करो, निकाह करने की कोशिश करो ताकि ये आदत जल्दी छूटे। सदका करो, रोजे रखो, किसी तरह सजा दो अपने आप को, लड़ो। हथियार डाल दिए ना, अगर हथियार डाल दिए कि यार मुझसे नहीं छूट रहा, ये फौज फिल्में मुझसे नहीं छूट रही, जिस दिन आपने हथियार डाल दिए तो बस अल्लाह भी कहेगा अब तेरे लिए जहन्नम के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्यों? अनुलजिमुकुमुहा, तू बचना चाहता नहीं है, हम जबरदस्ती जन्नत थोप दें, ये नहीं होगा। लड़ते रहना शैतान से, फिर अगर गुनाह से नहीं भी बचे ना, तो कम से कम ये तो होगा ना, अल्लाह कहेगा कोशिश पूरी की है इसने, कुछ इसने किया, कुछ मेरी रहमत काम आएगी। अगर आपने हथियार डाल दिए कि मुझसे बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं तौबा कर करके थक गया, फौज फिल्मों के बारे में तो बहुत है कॉमन ये चीज, यार तौबा कर करके थक गए भाई, हमसे नहीं छूट रहा है, चलो अब देखो बस छोड़ो, आदत डालो। तो फिर टाइम मुतय्यन कर ली हफ्ते में कितनी दफा देखना है। अब जब इस कंडीशन में आ गए ना, ये बहुत डेंजरस है। ये क्या है? इसका मतलब है कि अब आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया जहन्नम पे। तो जब आपने कर लिया है, फिर अल्लाह को कोई शौक नहीं है कि वो आपको जहन्नम से निकाले, वो बचाए जहन्नम से, ना ना, अल्लाह उसी के लिए जो कोशिश में लगा वो। तो इसलिए 100 बार अगर तौबा टूटी है, 100 बार क्या करो? तौबा। एक आखिरी बात करके, हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला एक बड़ी प्यारी मिसाल दिया करते थे, कहते थे खराब चीज अगर टूट जाए तो जोड़ी नहीं जाती, उसको उठा के फेंक दिया जाता है। एक प्याला आपके पास पत्थर का था, चीनी का प्याला था, टूट गया, कौन घंटों बैठ के जोड़ता है? उठा फेंक, मिट्टी का प्याला है दूसरा ले ले। लेकिन अगर वो सोने का प्याला हो और टूट जाए तो क्या कचरे में फेंक दोगे? एल्फी से दोबारा जोड़ोगे, फिर टूट गया, फिर जोड़ोगे, फिर टूट गया, फिर जोड़ोगे। फरमाते थे अल्लाह से ताल्लुक ये सोने के प्याले से ज्यादा कीमती चीज है। ये टूटती है गुनाह से, जुड़ती है तौबा की एल्फी से। और फरमाते थे ये एल्फी उल्फत से निकला है। समझ रहे हैं ना? ये एल्फी कहां से निकला है? उल्फत। तो उल्फत मोहब्बत ना, अल्लाह से की नाफरमानी की तो अल्लाह से नफरत, एक किस्म की नफरत ही है ये। तो उल्फत कैसे होगी? तौबा से। तो वो तौबा की एल्फी से ये ताल्लुक क्या होगा? दोबारा जोड़ा जाएगा। तो अल्लाह से ताल्लुक गुनाह कर करके बार बार टूट रहा है,